Good morning, students. Today we are going to see about the components of eukaryotic cells. Well, there is a number of components which are your cell wall, cell membrane, cytoplasm, Golgi complex, mitochondria, euchondria. Well, then your Golgi complex are the endoplasmic reticulum, glycosyl vacuoles, number of. So we stay step by step. So today we are going to see the three aspects. That is your cell wall, plasma membrane, and cytoplasm. Let's see. Well, this is the structure of cell wall in plant. This is your cell wall in plants. So what happened? Well, the cell wall, which is the made up of a rigid supportive. Well, this is the outermost layer. Simple है. सेल वॉल जो है सबसे बाहर की outermost rigid supportive layer है. अब बाहर रहेगा तो supportive रहेगा. Which role as a supporting role. Okay. In which plants, cells, fungi, protista, in there is a present of your cell wall. So if you see in algae, the cell wall is made up of the cellulose, the what can I say, the galactans, the mannans. Algae में cell wall किससे बनी है? Cell wall made up of cellulose, galactans and mannans. And in plant cell, or you can say in other cells, in other plant, the cell wall is made up of hemicellulose. Let me write here. In other plants, see. Hemicellulose is a pectin and lipid. पहले में किससे बनी थी? सेल्यूलोज से, गैलेक्टन से, मैनल से. In other plant, cell wall is made up of hemicellulose, pectin and lipid. Simple. क्या तक हो गया? Now, this is the outermost layer. See, I am drawing here point. इतना डायग्राम मुझे आता नहीं है, but I am trying my level best. ये जो ये आपका ऊपर का सेल वॉल है. इसके नीचे जो है, सॉरी, इसके बीच में see the second, the snake-like structure. This is your cell membrane. Outermost layer is your cell. This is made up of rigid supportive. Second, this membrane is your cell membrane, and the rest is the inside. ये जो बीच में है, this is your cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस है, और कैन से गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकोन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर है. बट टुडे वी ओनली सी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. नाउ सी व्हाट इट कंटेंट. Well, the cell wall, in some cases, the cell wall made up of, what can I say, the pectin, suberin, what can I say, suberin, silica, grass, stem cells, wax, lignin. These only some plant cell, not every cell. In some plant cell, it contains wax, silica, suberin, lipid. For what? To give the shape and size to the cell wall. And also to protect from the mechanical injury and the further infection. जो बाहर कुछ मैकेनिकल इंजुरीज है और जो इन्फेक्शन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम सेल वॉल का है. और कोई सेल वॉल जिसमें किससे बनी रहती है? जो वैक्स, लिपिड्स, सुबरीन एंड सिलिका. ऑल दिस कंपोनेंट्स व्हिच मेड अप ऑफ द सेल वॉल. सी नाउ द सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर. दैट इज अ मिडल लैमेला, primary wall and secondary wall. See, your middle lamella, this is first, then your secondary wall, primary wall and your tertiary wall. Let me tell you. So the middle lamella with the cell which are lying between the two adjacent cell. Middle lamella कहाँ पे present है? जब ये दो सेल है, ये दो सेल जब बाइंड हो रहे हैं, जब दोनों सेल अटैच हो रहे हैं, तो जहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं वहां पे आपकी कौन सी व्हाट कैन आई से लेयर रहेगी? मिडल लैमेरा. एंड विच इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम. मिडल लैमेरा किससे बनी है? पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, विच इज लाइज बिटवीन अटैच टू द टू एडजेसेंट सेल. सेकंड इज प्राइमरी वॉल. सी हियर, दिस इज वेल इनर, जस्ट इनर टू लैमेला की जस्ट अटैच कौन सी ले ले? प्राइमरी वॉल, which is made up of, which is only present in some category, in which your mesophyll, मेरिस्टेम एंड पिच, these all the cells, the primary wall खाली उसमें प्रेजेंट है.
बाकी स्पेसीज में प्राइमरी वॉल प्रेजेंट नहीं है एंड इट एक्ट एज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जो लेमेला की जो ग्रोथ है उसको कैपेबल करना प्राइमरी लेवल लेयर का काम है। सेकंड जो सेल वॉल हियर, अब ये किसको हटाए, ये प्राइमरी वॉल को हटाए। जहां प्राइमरी वॉल खत्म होती है, वेयर द प्राइमरी वॉल स्टॉप्स ग्रोइंग ऑन दैट पोजीशन फिर वो सेकेंडरी वॉल इज ग्रोन अप। समझ में आ रहा है? पहले लैमेला है कि जो दो एटम एक कर रहा है उसी को अटैच प्राइमरी है और उसी को ही अटैच आपकी सेकेंडरी वॉल है। सिंपल। नाउ what is it? It is present inner to the primary wall. Once the growth of primary wall stops, जब primary wall की growth stop होगा, secondary wall आपकी lay down, and it contain the plasmodesmata. What it contain? Plasmodesmata. Plasmodesmata, which is response. Let me read. Plasmodesmata. अलग ही नाम है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जो मिडिल वॉल है और सेकेंडरी वॉल, उनके बीच में जो पोर्स है, ऐसे डॉट 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 पोर्स रहते हैं, तो पोर्स में क्या रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा, विच इज एज अ नेबरिंग, एक ब्रिज है। वो जो सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और लैमेला, तीनों वॉल को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम, जैसा बोल सकते हैं एक ब्रिज, एक पुल। नदी है, एक साइड से एक या काटा है त्या काटा है, दोघांना कनेक्ट करून करता पुल ना, एक पुलाचं काम कोण करतं? प्लाज्मोडेस्माटा, एक ब्रिज, ऍक्ट एज अ ब्रिज। सेकंड इज योर सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज योर सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई एम सॉरी, ये भी हटा दिया, लेट इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। Let me what it contain? Well, it is a thin cosified structure present both extracellularly and intracellularly. एक थिक स्ट्रक्चर रहता है सेल मेम्ब्रेन, विच इज ए मेम्ब्रेन है, तो ये एक थिक और कॉसिफाइड मेम्ब्रेन जो बाहर से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी यहाँ से भी ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अंदर से इसको अटैच है। तो एक्स्ट्रासेल्युलरली एंड इंट्रासेल्युलरली, वेल द एक्स्ट्रासेल्युलरली which is made up of the cell, what say bound cell organelles, जो बाहर के सेल ऑर्गेनल्स है उसको बाउंड कर रहा है और अंदर किसको बाउंड कर रहा है? प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन किसको क्लास कर रहा है? बाहर से बाउंड कर रहा है प्रोटोप्लास्ट, अंदर से बाउंड कर रहा है सेल ऑर्गेनल्स को। द थिकनेस एंड दी लिपिड मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, उसमें आपको दिया नहीं है, बट इट मेड अप ऑफ 3 लेयर। The cell membrane made up of 3 layers. If you see electron microscope, you can see that. Okay. So here is the presence of lipids. Here is the presence of lipids. Which lipids? 2. One is your hydrophilic and hydrophobic. Here hydrophilic means the cells which are water loving and hydrophobic means which are water hating, इनको पानी पसंद है और इनको पानी से नफरत है। वाटर लविंग और वाटर हीटिंग, एंड बोथ दी प्रेजेंट। एक सैंडविच रहता है, ऊपर एक ब्रेड रहता है, नीचे एक ब्रेड रहता है, उसके बीच में कुछ मक्खन से मसाला रहता है, सैंडविच लाइक। वन इज हाइड्रोफोबिक, वन इज हाइड्रोफिलिक, एंड इन बिटवीन देम, ये जो स्पेस है इन बिटवीन देम देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ मेम्ब्रेन, विच मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। सपोज अभी ये दो ब्रेड है, ये आपके दो ब्रेड है, ओके, जैसे सैंडविच का। अब इसके बीच में क्या रहेगा? तो मसाला रहेगा, वो किससे बना रहेगा? फॉस्फोलिपिड। अभी ये जो है वन इज योर हाइड्रोफिलिक और वन इज योर हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग एंड वाटर हीटिंग। इन बिटवीन देम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, व्हिच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ओके। एंड टू नो द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ वन थ्योरी मॉडल व्हिच आर डिस्कवर्ड बाय निकोलसन 1972। एक साइंटिस्ट है निकोलसन, इन्होंने 1972 में एक मॉडल डिस्कवर किया, उसको बोलते हम फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये आप देख सकते हो, सी बॉटम में है यहाँ पे,
तो मॉडल क्या कहता है? वेल इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर ऑल सेल मेम्ब्रेन। मॉडल तो बहुत सारे बने, बट द फ्लूइड मोशन मॉडल विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल विच इज गिवन बाय निकोलसन इन ये साथ है 1972। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाय मींस टू। अब ये दो लेयर का बना है, और दोनों लेयर किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन्स आर आइसबर्ग, तो प्रोटीन्स कैन चेंज देयर पोजीशन, सम प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिक। उस फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या प्रोटीन अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकता है। ओके, दे स्पैन द इमिट्स थिकनेस, एंटायर थिकनेस। अभी जैसे बताया था ना ब्रेड, उसको जान ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस को रिस्पांसिबल कौन है? जो लिपिड में फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन वहां पे रिस्पांसिबल है। जितना हायर प्रोटीन रहेगा, और एक काम है उसका, अभी दो एनर्जी रहती है सेल मेम्ब्रेन को, एनर्जी लगती है, वन इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, अनदर इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इफ यू सी अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट and active transport. In your passive transports, the energy carried from higher concentration to lower concentrations. तो वहाँ पे एनर्जी नहीं लगती, जो कॉन्सेंट्रेशन कैरी हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक कैरी हो रहा है। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द कॉन्सेंट्रेशन कैरी फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपके घर के ऊपर एक सिंटेक्स टाकी, पानी की टैंक है। तो आपको नीचे से अगर टैंकी में पानी भरना है, तो नीचे से पानी ऊपर भेजने के लिए आपको मोटर लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, क्योंकि पानी ऊपर जाएगा नहीं, फोर्स ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। दिस विल हेल्प योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। बट इफ यू सी अबाउट अब टैंक, ऊपर का टैंक फुल हो गया, जो सिंटेक्स का पानी वो अगर आपको नीचे नल में लाना, बाथरूम में, आपको नल की जरूरत नहीं है, वो सीधा टैप चालू हो गया, पानी जो वाटर है कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। तो ऊपर से पानी को नीचे आने के लिए एनर्जी नहीं लगी, बट पानी को नीचे से ऊपर जाने के लिए, टैंक में जाने के लिए एनर्जी लगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो एक्टिव में एनर्जी लगती है, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। दिस इज वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी ग्रो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और उसी का काम कुछ किसका है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का काम है, प्रोटीन का काम है। उसके बाद आपका हो गया साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म में क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या से न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, बहुत सारी चीजें हैं। इसका मेन काम क्या है? इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल सोर्स। इसका मेन काम क्या है? साइटोप्लाज्म का मेन काम है कि एक्ट एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में इसका मेजर सोर्स क्या है? वाटर। उसका मेजर सोर्स है वाटर। वाटर के थ्रू उसको एनर्जी भी लगती है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है वो भी कैरी आउट कर रहा है, और जो भी एनर्जी, फूड, न्यूट्रिशंस, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अंदर क्या है? फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, न्यूक्लियस, माइक्रोवाइब्स, इतनी सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। एंड इट एक्ट एज अ मेजर सोर्स, एक्ट एज अ मेजर सोर्स। ओके, सो बस साइटोप्लाज्म में इतना ही है कि मेजर सोर्स है और सब एक सोर्स कैरियर कर रहे हैं। सो जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द व्हाट कैन आई से द सेल मेम्ब्रेन वी सी नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।